Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. For those who are new to the channel, my name is Mrs. Renu Bansal and I am a PGT who is involved in active teaching of classes 10th, 11th and 12th. I have 17 years of teaching experience and would like to share the knowledge I have gained with all curious and inquisitive minds who want to excel in their fields. Today we are going to study the chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela himself. Nelson Mandela was the first to become South Africa's first black president after the end of apartheid in 1994. He was an anti-apartheid revolutionary and political leader who fought for the freedom of his country from the oppressive rules of the whites. He was imprisoned for 27 years, but his strength and determination kept him going till the end of the struggle. He was a humble and down-to-earth man who appreciated the sacrifices of thousands of men in freedom struggle. ये उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं जब वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीका में इन द ईयर 1994. उन्होंने अपार्टेड के अगेंस्ट लड़ाई करी एंड 27 years तक वो imprisoned रहे, but उन्होंने हार नहीं मानी. The chapter has a very important theme and message. This is that people all over the world are equal and deserve respect. दुनिया में हर इंसान equal है और उसको सम्मान देने की ज़रूरत है. Love comes more naturally to human beings than hatred. इंसान प्यार से बना हुआ है, नफ़रत से नहीं. And freedom from bondage is important for both the oppressed and the oppressor because slavery robs both of them of their humanity. जो तकलीफ़ देते हैं, जो अत्याचारी हैं, उनको भी रिहाई की ज़रूरत उतनी ही है जितनी उनके विक्टिम्स को है, क्योंकि दोनों की ही ह्यूमैनिटी ये जो ऑपरेशन है ये ख़त्म कर देती है. एंड फाइनली द थीम courage, strong determination, wisdom and generosity can help one to fight against the hardships of life. अगर हम हिम्मती हैं, हमने दृढ़ विश्वास है, हम वाइज हैं और अगर हम दूसरों के लिए जेनरस हैं तो हम कोई भी ज़िंदगी की मुश्किल के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं. Now this chapter is an extract from Nelson Mandela's autobiography, that is A Long Walk to Freedom. It includes the historic occasion of inauguration ceremony of the first democratic government of South Africa. South Africa की जो first democratic government बनी थी, उसमें नेल्सन मंडेला की inauguration ceremony को celebrate करते हुए ये chapter है. It is a brief description of the policy of apartheid, that is racial discrimination, जो whites blacks के against करते थे. It is a brief description of Mandela's bitter experiences during the struggle against apartheid. This chapter also talks about the important role played by extraordinary men in the freedom of struggle. Freedom of struggle में एक इंसान की involvement नहीं होती है, but इसमें freedom को achieve करने के लिए हज़ारों लोगों की sacrifices involved होती हैं. Nelson Mandela यहाँ पे he talks about what is the meaning of freedom for him, and this chapter also tells us about the honor and respect that we pay to a newly formed democratic government. दुनिया को चलाने के लिए democratic government कितनी important है ये chapter के through हमें पता चलता है, नेल्सन मंडेला के sentiments के through पता चलता है. Then finally the Nelson Mandela's views regarding the oppressor and the oppressed is also very fundamental part of this chapter. उनको oppressors के लिए भी उतनी ही दया भावना थी जितनी उनको oppressed के लिए थी. The inauguration ceremony of South Africa's first non-racial government was held on 10th May 1994. Mandela considered the day as that lovely autumn day. जैसे trees अपने old और पुराने leaves को autumn में गिरा देते हैं, the same manner South Africa also shed its oppressive policies, making room for the new government. उसी तरह से अफ्रीका ने भी अपनी गंदी पुरानी
डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ का त्याग करके नई नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए जगह बनाई. This function was held at the amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this area had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations. ये जो एम्फी था ये बरसों से वाइट सुप्रीमेसी का प्रतीक था, एंड नाउ द सेम साइट was the site of rainbow gathering. Rainbow gathering क्यों बोला गया है? Because people from all over the world having different skin tones gathered there to give respect to a nation जो पहली बार आज़ाद हो रहे थे, जो पहली बार जिनकी एक democratic government बनी थी. Now this was attended by international leaders from more than 140 countries. 140 कंट्री से ज़्यादा के इंटरनेशनल लीडर्स ने इस फंक्शन को अटेंड किया, और ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी आज तक की. इट वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ था. अब इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में मिस्टर डी क्लर्क जो थे, ही बिकेम द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. थाबो मैकी वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, and Nelson Mandela was sworn in as the first black president. नेल्सन मंडेला की सपोर्ट में उनकी डॉटर भी उनके साथ खड़ी हुई थी. When Nelson Mandela was sworn in, he pledged to obey and uphold the constitution of his republic. उन्होंने अपनी अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना, ना सिर्फ मानना बट लोगों को भी एनफोर्स करना कि वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फुलफिल करें. दैट वॉज द प्लेज, द ओथ दैट ही टुक. देन ही प्रॉमिस टू प्रोवाइड ग्रेट होप एंड ग्लोरी टू द न्यू बॉर्न फ्रीडम. उन्होंने कहा ये फ्रीडम पुराने उस तक नहीं सीमित रहेगी, वो और भी ज़्यादा उम्मीद और ग्लोरियस बनेगी इन द फ्यूचर ईयर्स टू कम. ही कॉल्ड द सेंचुरीज ओल्ड मिसरूल ऑफ द वाइट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर. उन्होंने और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस ये जो इतने सालों साल 300 साल पुरानी सुप्रीमेसी थी, इसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर का नाम दिया. और ही moreover felt proud that the blacks who were considered outlaws, आज तक साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को आउटलॉज माना जाता था. आउटलॉज मतलब द पीपल हु ब्रेक द लॉ, एंड नाउ दीज आउटलॉज were hosting the different nations of the world. So he felt proud, very proud of this fact. He thanked all the dignitaries for participating in this common victory for justice, peace and human dignity. उन्होंने तहे दिल से हर एक का शुक्रिया अदा किया कि आपने जो ये वर्ल्ड जस्टिस, वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड ह्यूमन डिग्निटी को सेलिब्रेट करने के लिए सब इकट्ठे हुए. Then he promised to liberate all the people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination, and never allow his people to experience any kind of oppression of one by the other. उन्होंने बोला कि ना सिर्फ ऑपरेशन ख़त्म करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करेंगे, बट जो दूसरी बॉन्डेज है, द बॉन्डेज ऑफ पावर्टी, गरीबी, डेप्रीवेशन, कमियां ज़िंदगी की, जो तकलीफ़ें हैं, जो इवन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, वो उस चीज़ को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे. एंड देन ही फाइनली एंडेड, he quoted, not ended exactly, but he quoted the saying that the sun shall never set on so glorious a human achievement. अगर आपको पता होगा तो ब्रिटिश एम्पायर के लिए यह बात बोली जाती थी that the sun never set on the British Empire because ब्रिटिश एम्पायर पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक टाइम पे राज कर रहा था. तो कहीं अगर दिन होता था तो कहीं रात होती थी. तो इसलिए जो ब्रिटिश एम्पायर का ताज है वो हमेशा सन के अंडर रहता ही था, सम पार्ट ऑफ द अदर. और उसी चीज़ को नेल्सन मंडेला ने भी अपने लिए, अपने देश के लिए कहा कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इसके ऊपर कभी द सन विल never set on such a glorious achievement. When he was giving the speech, there was an impressive show of loyalty
to democracy by the South African jets, helicopters and troop carriers. They rode in perfect formation over the Union building. जो हम अपनी रिपब्लिक डे परेड में देखते हैं वही चीज़ नेल्सन मंडेला की इनॉग्रेशन सेरेमनी में साउथ अफ्रीकन जेट्स ने किया. This was a display of pinpoint precision and military force, a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new freely and fairly elected government. ये जो इनका डिस्प्ले था, this was a demonstration of the military's loyalty. मिलिट्री अपना ओथ दे रही थी, प्लेज कर रही थी कि जो न्यू गवर्नमेंट है उसके लिए भी हम उतने ही लॉयल होंगे, उतने ही फेयर होंगे जितने हम पुराने गवर्नमेंट के लिए थे. नेल्सन मंडेला ऑल्सो टॉक्स अबाउट द जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस. वो बोलते हैं कि ये लोग बिल्कुल भी बिफोर दिस डेमोक्रेसी, बिफोर दिस इनॉग्रेशन, दे वुड नॉट हैव हेजिटेटेड टू अरेस्ट मंडेला because he was considered an outlaw. But now on this inauguration day they saluted him and expressed their loyalty to him on this occasion. नेल्सन मंडेला इस बात को मानते हैं कि ये जो जनरल्स हैं, ये जो पुलिस है जो मुझे आज सल्यूट कर रही है, ये कुछ साल पहले मुझे उतने ही आसानी से अरेस्ट कर सकती थी. बट नाउ दे हैव गिवन देयर लॉयल्टी टू द नॉन रेशियल गवर्नमेंट. Then finally a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold colors of the new South African flag. जो Impala jet था उन्होंने smoke छोड़ी of the different colors which symbolize the South African flag. A very spectacular feature of this inauguration ceremony was the fact that the whites were singing the national anthems of the black and the blacks were singing the national anthems of the white. Now this symbolized the coming together, the equality of both the groups. ये जो इनका जो गवर्नमेंट बनी थी, ये बड़ी अद्भुत गवर्नमेंट बनी थी. इंडिया में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो वाइट्स ने पूरी तरह से इंडिया को छोड़ दिया था, राइट. इंडियन लीडर्स ही इंडिया के गवर्नमेंट को बना रहे थे. बट अफ्रीका में ऐसा नहीं था. There was an equal participation of the presence of the blacks and whites. वो दोनों equal बन गए थे. And ये जो इनका जो national anthem, both the national anthems का जो singing together वाला part था, ये इस बात का प्रतीक था that nothing would separate them on the basis of race. अब के बाद उनको कोई separation due to race नहीं होगा. And also it prophesied that although neither नेल्सन मंडेला ने ये भी prophesy किया कि इस टाइम पे neither of the groups knew the lyrics of the anthem, and also that this anthem was something they had despised earlier, right. blacks white का anthems को despise करते थे और whites जो हैं वो black के anthems को despise करते थे. But after this inauguration ceremony, नेल्सन मंडेला को 100% यकीन था that very soon both the groups would know the others national anthem by heart. एक दूसरे की national anthem को वो by heart word to word learn कर लेंगे. In order to understand that why did Africa go through this human disaster, we need to understand the history of South Africa. This happened after the Anglo-Boer War in the first decade of the 20th century. That is 1901 से लेके 1910 के बीच में जो वाइट स्किन्ड लोग हैं उन्होंने ये अपने अंदर उनके आपस में बहुत डिफरेंसेस थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे. बट इस डेकेड में फ्रॉम 1900 to 1910 इन्होंने अपने डिफरेंसेस को पैचअप किया and they erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. People's word इसलिए बोला है because it refers to different communities that were existing over there. This was the system of apartheid. Whites ने बोला कि हम जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक हम ये ब्लैक स्किन पीपल को डोमिनेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने डिफरेंसेस को ख़त्म किया. नाउ ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया, दिस सिस्टम वाज द हार्शेस्ट
and the most inhumane ever. बहुत ज़्यादा क्रूअल था, बहुत ज़्यादा अत्याचारी था और बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन था. इनह्यूमेन मतलब जो इंसान को इंसान नहीं समझते थे. But now in the last decade of the 20th century, that is from 1990 till 2000, a new system based on equal rights and freedom for all replaced the old one. नेल्सन मंडेला के नए रजीम ने, नए रूल ने, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ने पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर दिया. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people. ये जो दिन आया था ये किसी एक आधे के सैक्रिफाइस के कारण नहीं आया था. हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और ये ऐसे सैक्रिफाइसेस थे विच कुड नेवर बी काउंटेड और रिपेड. कभी भी इनका इनका शुक्रिया अदा ख़त्म नहीं कर सकते थे. दे वर कम्प्लीटली अनरिपेएबल. कभी भी हम उनका मतलब उनके लिए जो आदर है, सम्मान है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता था. Now this day signified, this was the time when one noble line ended and it was also the beginning of another noble line. इसका मतलब है कि अब तक जो सैक्रिफाइसेस अपनी फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए जो सैक्रिफाइस किया था, उन लोगों का जो नोबल लाइन था वो नेल्सन मंडेला पे ख़त्म हुआ था. बट नेल्सन मंडेला के फर्स्ट नॉन रेशियल प्रेसिडेंट बनने पर, नॉन रेशियल गवर्नमेंट आने पर उनके साथ एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ था जहाँ पे इंसानों को इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए, उनको प्रोग्रेस करने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रगल की ज़रूरत थी. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. बोलते हैं कि इस मेरे से पहले की जो पेट्रियट्स थे वो मेरे में, मैं ही उनका प्रतीक हूँ. यहाँ पे मेरे में ही आप उनको देखोगे. उनका स्ट्रगल आज ख़त्म हुआ बट मेरे साथ ही, मेरे में ही आप उन लोगों को भी देखोगे जो अब एक नया स्ट्रगल शुरू करेंगे. जब नेल्सन मंडेला ने इस स्ट्रगल के बारे में बात किया, then he started talking about the effects of the policy of apartheid. He said that it created deep and lasting wounds in the people. इतने गहरे जख्म दिए थे कि उससे ऊपर उभर पाना बहुत मुश्किल था. But he is also talking about the positive side of apartheid. He said that decades of exploitation produced real patriots and men of extraordinary courage, wisdom and generosity. इन्होंने कहा अगर ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती तो ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसिलिस, चीफ लुथली, यूसुफ डाडो, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट साबुको, ऐसे लोगों का आगे आना, अपना सैक्रिफाइस कर जाना, लोगों पे इतना बड़ा इफ़ेक्ट छोड़ के जाना, ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती. जब कोई ऑप्रेस करता है, जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होती है, तभी लोगों पीपल ऑफ करेज, उन लोगों का जन्म होता है. He says it is only with such depths of depression that such heights of character are created. अगर डिप्रेशन नहीं होता तो उससे लड़ने के लिए इतना हाई कैरेक्टर के लोगों का भी जन्म नहीं हो पाता. फर्दर इस बात को एलैबोरेट करते हैं ये कहकर कि ये सारे लोग इन लोगों को सिंबलाइज करते हैं. वो सारे जो अफ्रीका के लोग जो अननेम्ड सोल्जर्स हैं, अनरिकग्नाइज सोल्जर्स हैं, दे आर ऑल द सिम्बल्स, दे आर ऑल द चीफ टैम्बोस, वॉल्टर सिसिलिस ऑफ अफ्रीका. मतलब उनका सैक्रिफाइस कभी भी अनएक्नॉलेज्ड नहीं जाएगा. ही देन फर्दर टॉक्स अबाउट द रियल रिचेस ऑफ साउथ अफ्रीका. अफ्रीकन गवर्नमेंट, अफ्रीका को माना जाता है दैट इट इज़ अ वेरी वेल्दी नेशन because it is a fundamental well of greatest minerals and diamonds and gems are found in this country. But नेल्सन मंडेला की ओपिनियन कुछ और है. बोलते हैं कि डायमंड्स और मिनरल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे देश के लोग. He says his people were the greatest wealth of his country. They made Africa richer than what it became with the minerals and gems
that were found in his country. He said that he learned the real meaning of courage from such patriots, and for him, courage was not the absence of fear but the triumph over it. बोलते डर महसूस करना ये तो बड़ा एक हर ह्यूमन के लिए ज़रूरी है. वो करेज नहीं होता है कि आपको कभी डर ही ना लगे, बट डर महसूस करके उसके ऊपर उठना, उसके ऊपर जीत पाना, दैट इज़ द रियल करेज. He says the brave man is not one who does not feel afraid, but one who conquers that fear. He shared that love comes more naturally in the human heart than hatred. If अगर हम इंसान को हेट करना सिखा सकते हैं, तो प्यार करना तो उससे भी ज़्यादा आसान है सिखाना, बिकॉज इंसान प्यार से बना है, नफ़रत से नहीं. Finally, he says in his days of long imprisonment as a freedom fighter, जब उनके इतने 27 years of imprisonment हुआ था and he was really tortured in that time, तो जब उनको torture किया जा रहा था, one of the guards, उनकी आंखों में there would be a glimmer of humanity. And even at this most critical point, जब नेल्सन मंडेला को लगता था कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, this glimmer of humanity would give him courage to endure. To endure मतलब उस अत्याचार को बर्दाश्त करना. And this made him believe that humans' goodness is a flame that cannot be hidden. That can be hidden but never be extinguished. उन्होंने कहा कि इंसान की जो इंसानियत है, अच्छाई है, आप उसको छुपा सकते हो, बट आप उसको जितना मर्जी ऑप्रेस कर लो, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती थी. वो गार्ड्स चाहे उनको मार रहे थे, नेल्सन मंडेला को टॉर्चर कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये टॉर्चर करने पर उनको भी तकलीफ़ हुआ करती थी. नेल्सन मंडेला फर्दर एलैबोरेट करते हैं कि एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज फैमिली मतलब वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टूवर्ड्स हिज कंट्री का मतलब है जो वहाँ के लोग रहते हैं, जो वहाँ के कम्युनिटीज़ हैं. बट ही फर्दर एलैबोरेट्स कि उनकी कंट्री में एंड नो ब्लैक पर्सन वॉज अलाउड टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस. उनको हक ही नहीं था कि वो अपनी कोई भी ऑब्लिगेशन पूरी कर पाए. अगर वो फैमिली को ऑब्लिगेशन पूरी करते थे, देन दे वुड हैव टू दे कुड नॉट डू एनी थिंग फॉर द कंट्री. एंड अगर वो कंट्री के लिए ऑब्लिगेशन पूरी करना चाहते थे, देन दे वुड हैव टू गिव अप देयर फैमिली. उनको कंट्री के लिए फ़ाइट करना वॉज कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम, और उनको जेल कर दिया जाता था. तो जेल से बचने के लिए दे वुड हैव टू लीव देयर फैमिली एंड रन. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मंडेला टू. After this, Mandela talked about the meaning of freedom for him. He said that as a child, I did not hunger for freedom because I was born free. उनको पता ही नहीं था कि वो गुलाम हैं. उनको पता ही नहीं था that they were not free to live their lives as they wanted. Because for him as a child, उनके ऊपर कोई restriction नहीं था. He was free to run in the fields near his mother's hut. He was free to swim in the clear stream that ran through his village. He was free to roast mealies under the stars. He was free to ride the broad backs of slow-moving bulls. जो बच्चों के शौक़ थे अफ्रीका में, उस किसी काम को करने से उसके ऊपर रोक टोक नहीं थी. वो अपनी मम्मा के फील्ड्स के बाहर भाग सकते थे, स्ट्रीम में नहा सकते थे, स्विम कर सकते थे, वो तारों के नीचे खाना बना सकते थे, और वो बुल्स के ऊपर राइड कर सकते थे. As long as he was obeying his father and he was abiding by the customs of his tribe, he was not troubled by the laws of man or God. उनके ऊपर किसी भी तरह की बंदिश नहीं थी, as long as वो अपने ट्राइब के कस्टम्स को और अपने फादर के लॉज को मान रहे थे, फुलफिल कर रहे थे. If we want to sum it up in one word, then for him freedom as a child was just an illusion. it was a mirage. उनको लगता था कि वो फ्री हैं, बट वो एक्चुअल में फ्री नहीं थे. लेटर ऑन एज अ स्टूडेंट उनको फ्रीडम चाहिए था, विच वॉज जस्ट ट्रांजिटरी मतलब छोटी मोटी फ्रीडम. ही वॉन्टेड टू बी एबल टू स्टे आउट एट नाइट,
read what he pleased and go where he chose to go. एक जब वो स्टूडेंट थे तो जो छोटे बच्चों को फ्रीडम चाहिए होती है, आई मीन छोटे बच्चे नहीं बट टीनेजर्स, कि रात को फ्रेंड्स के साथ बाहर गए, जो मर्जी किताब पढ़ी, जहाँ जाना है वहाँ जाने की फ्रीडम. तो दिस इज़ जस्ट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम दैट ही वांटेड एज अ स्टूडेंट. When he grew up as a young man, that time he desired the freedom, he desired the basic and honorable freedom of achieving his potential. उनको फ्रीडम चाहिए थी कि मैं जो चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, जो मेरी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने की मुझे फ्रीडम चाहिए. इच्छाएं किस चीज़ की थी? ऑफ अर्निंग हिज कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी obstructed इन अ लॉफुल वे ऑफ लाइफ. बोलते थे कि मेरी कोई ज़्यादा मांगे नहीं थी. आई जस्ट वॉन्टेड द फ्रीडम टू अर्न माई लिविंग. एक अच्छी खासी नौकरी की, एक अच्छी गर्ल से शादी करने की और एक लॉफुल लाइफ जीने की फ्रीडम थी. हाउएवर व्हेन ही ग्रू अप, व्हेन ही जब वो ये चीज़ों करने से उनको रोक दिया गया, it was then he realized that he was not free, that not only he but his brothers, his countrymen were not free as a race. It was at this point that he joined the African National Congress. जब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी मर्ज़ी से जॉब नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से एजुकेशन नहीं ले सकते, अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकते हैं, दैट टाइम ही रियलाइज कि उनकी जो पूरी कौम है, जो पूरा रेस है, दे वर नॉट फ्री. And for this freedom, in desire for this freedom, he joined the African National Congress. And then he says, this was the point when freedom for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. बोलते it was as a grown up कि मुझे समझ में आया कि जो मेरी फ्रीडम है वो सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं होगी, बट जब तक कि all my people, all the people of my country do not become free. So that is when he started fighting for freedom. Now in pursuit of his freedom he did join the African National Congress, but वहाँ पे जाकर नेल्सन मंडेला की लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए. वो क्या चेंजेस थे? उसने जो ज्वाइन किया था नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इट वाज बिकॉज ही वांटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. बट ही रियलाइज्ड कि ये मुझे आसानी से नहीं मिलेगा. इससे पहले नेल्सन मंडेला जो थे, ही वॉज ए टिमिड मैन. टिमिड मैन मतलब जो बहुत आसानी से डर जाते थे. किसी ने भी कुछ कहा तो उनकी बात मान लेना. ही वॉज नॉट रेडी फॉर द रेपरकशंस ऑफ गोइंग अगेंस्ट द नॉर्मल सेट रूटीन. मतलब लोगों की सोच का विरोध करके एक अपने लिए नई रास्ता बनाना, इतनी हिम्मत नेल्सन मंडेला में नहीं थी. बट वंस ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इट ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम अ टिमिड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बोल्डली जीना शुरू किया. देन वो एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी थे. अटॉर्नी मतलब वकील. एंड नाउ ही टर्न्ड इनटू अ क्रिमिनल, बिकॉज जो भी वाइट्स के अगेंस्ट लड़ाई करता था वो ऑटोमेटिकली आउटलॉ कहलाया जाता था. देन ही वॉज जस्ट अ फैमिली लविंग हस्बैंड. नाउ ही बिकेम अ मैन विदाउट अ होम. उनको अपने आप को बचाने के लिए अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे को छोड़ना पड़ा. सो नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अ फैमिली मैन, ही वॉज अ मैन विदाउट अ होम. एंड फाइनली ही वॉज अ लाइफ लविंग मैन. नाउ ही हैड टू लिव लाइक अ मंक. उनको ज़िंदगी की जो खुशियाँ थी, छोटी मोटी एन्जॉयमेंट के जो तरीके थे, वो सब का त्याग करना पड़ा. एंड ही हैड टू लिव लाइक अ मंक. Now he could not enjoy the poor and limited freedom he was allowed, as he knew his people were not free. जो ब्लैक्स को छोटी मोटी फ्रीडम मिली हुई थी, अब उन चीज़ों से भी नेल्सन मंडेला को डिनाई कर दिया गया था, बिकॉज ही वॉज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री. बट ही सेड दैट फॉर मी फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल. इनडिविजिबल मतलब ऐसे नहीं हो सकता था कि ये लड़ाई मैं अपने लिए लड़ूँ, उनके लिए ना लड़ूँ. फ्रीडम अगर एक को मिलेगा तो फिर वो हर एक की ही लड़ाई बन जाएगी, वो हर एक को मिलेगा. द चेन्स ऑन एनी वन पर्सन ऑफ हिज लाइफ, ऑन एनी वन ऑफ हिज पीपल वर चेन्स ऑन हिम. कोई भी इंसान अगर उनकी कंट्री में स्लेवरी के बॉन्डेज के अंडर है, देन ऑल ऑफ देम वर अंडर द बॉन्डेज ऑफ स्लेवरी. Till this point we get to know that why did Mandela fight for the freedom of his country.
बट हमें ये नहीं समझ में आता है कि हाउ डिड मंडेला कंसिडर द ऑप्रेसर ऑल्सो टू बी अंडर अ बॉन्डेज। मतलब ऑप्रेसर तो वो होता है जो अत्याचार कर रहा है, तो वो कैसे वो कैसे चेन्स में बंधा हुआ है, उसको हमें क्यों तरस करना चाहिए। ये जो कंसेप्ट नेल्सन मंडेला ने हमें बताया, ये थोड़ा सा इट्स अ वेरी ह्यूज कंसेप्ट और बिल्कुल मतलब हमारी सोच से हटके है। एंड इट ट्रूली मेक्स अस वंडर, इट ट्रूली मेक्स अस रियलाइज that what Mandela said was the truth. He said both are prisoners, not only the oppressed जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, but even the one जो अत्याचार कर रहा है, both are prisoners. The oppressor is a prisoner because he is bound by hatred. Hatred ने oppressor को जकड़ा हुआ है, इसीलिए वो prisoner है। वो he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. उसकी सोच इतनी छोटी है, वो लोगों के विरुद्ध इतना ज़्यादा है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता है, एंड दैट इज़ वाई ही टू इज़ अ प्रिजनर। ऑन द अदर हैंड द ऑप्रेस्ड इज़ अ प्रिजनर बिकॉज हिज फ्रीडम हैज़ बीन टेकन अवे। जो ऑप्रेसर है वो तो ऑटोमेटिकली जो ऑप्रेस्ड है वो तो ऑटोमेटिकली ही प्रिजनर है बिकॉज उसकी फ्रीडम ले ली गई है। एंड ही सेज दैट नॉट ओनली द ऑप्रेस्ड but also the oppressor, both of them are robbed of their humanity. दोनों में इंसानियत ख़त्म कर दी जाती है। ऑप्रेसर में उसकी नफ़रत ख़त्म करती है इंसानियत, और जो ऑप्रेस्ड होता है उसमें ऑप्रेसर उसकी इंसानियत को ख़त्म कर देता है, उसको जानवर की तरह ट्रीट करता है। So on this note we come to the end of the video. I hope that you liked it and would be encouraged to share it with your friends and family. Please do not forget to like the video and subscribe to the channel, as I really need the encouragement this provides. Also do not forget to press the bell icon for further notification, as I'm going to come up with several videos which will help you in getting good marks, in getting a good grade. Thank you so much for watching.